While scrolling Swiggy, Instamart, or Blinkit, or when you're out and about doing your fruit shopping, I can guarantee you must have come across this fruit. Now, at first instance, it might look like an organic or a distant cousin of tomato, but it's not. This is India's new obsession. This is persimmon. Hello and welcome to The Print. I am Triya Gulati, and today we are in this beautiful orchard in the Lag Valley of Kullu district. Lag Valley alone houses over 1 lakh trees of persimmon, and that is why it is called the paradise of persimmon. Now, why is this fruit popular? Well, there are two main reasons. In the urban markets of Delhi, Bombay, Bangalore, Kolkata, this fruit is famous for its health benefits. It's rich in minerals, it's rich in micronutrients. Because it's a Japanese fruit, so there is a notion that eating this will give you a glass skin. But for the farmers of Himachal Pradesh, this is the easiest way to make profit. Himachal Pradesh's persimmon story began nearly a decade ago, but its heart still lies firmly in Kullu. The harvest window is short, just 3 months, but demand travels far beyond the hills, reaching markets in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, and Kolkata. Once dismissed as that strange tomato like fruit and often mispronounced as Simran in markets like Maharashtra, the persimmon has quietly emerged as a profitable alternative to apples, plums, pears, and pomegranates. Its biggest advantage lies in its resilience. Unlike apples, persimmons are better suited to a warming climate, thriving in lower and mid altitude regions. ये लगातार जो है शिफ्टिंग हो रहा है स्पीसीज़ का वजह दोनों है, क्लाइमेट चेंज भी वजह है और मार्केट भी वजह है। पहले यहाँ इन इलाकों में जहाँ आज खड़े हैं छुरला गांव में, ये डुग्गी पंचायत का छुरला गांव है। सबसे पहले फार्मिंग के तौर पर कहेंगे कि जो यहाँ का किसान शेर सिंह है छुरला का, उसने इस गांव में शुरू किया ये काम। जैसे कि देखा हमने दिन सुबह भी जब हम भुंतर मार्केट में, तो एक एक कंपनी वाला जो है फ्रूट ग्रो कंपनी वाला, उसने इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये पिछले 10 सालों में ये फैल गया है। ये सब पेड़ 8-10 साल के हैं, इससे पहले नहीं था। इस जगह जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पहले सेब का बगीचा था, लोगों ने सेब का बगीचा हटा के ये किया। हम लोग जो इसको कह रहे हैं कि अच्छा है, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सेब में बहुत सारी रिक्वायरमेंट पेस्टिसाइड्स की है। हम 10 बार सेब में स्प्रे करते हैं और उसके बाद फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। परसिमन में हम मिनिमम जो है 1 या आधी स्प्रे, 2 स्प्रे अगर फंगस लगे तो बरसात में कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती। और खाद की भी रिक्वायरमेंट कम है और उसमें हम ज़्यादातर बर्मी कंपोस्ट और दूसरा मैन्योर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शंस हैं किसानों के लिए। तीसरी बात है कि अभी जो पिछले ये जो नई मार्केट इंट्रोड्यूस हुई और इंडियन कंज्यूमर्स को जो है परसिमन का खाने का अब जो है स्वाद लग गया और उन्हें अंदाज़ा लग गया, तो उसके बाद इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा हो गई। सेब अभी तक भी 60-70 रुपया से ऊपर 100 रुपया तक मैक्सिमम जाता है। परसिमन आज की डेट में भी 250-300 रुपया भुंतर मार्केट में बिका है। इसका 100 से 300 तक का रेंज है जिसमें ये बिकता है। तो लोगों को एक तो ये जो है इसमें इसके कल्टीवेशन में खर्चा कम है, इसमें कम दवाई खाद का प्रयोग है। दूसरा ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तीसरा बहुत जल्दी 4 साल में ये पौधा जो है ना फल देना शुरू करता है और अब मार्केट में ये अच्छी खासी फसल मतलब इनको कीमत दे रहा है। तो इसलिए ये ज़्यादा अभी पॉपुलर हिमाचल प्रदेश के इस कुल्लू वैली में, और कुल्लू के बाद मैं देख रहा हूँ मंडी के और शिमला में भी अब शुरू हो गया है, परसिमन लगाना लोगों ने शुरू कर दिया। Persimmon production in Himachal has more than doubled in the past decade. From 403 hectares, yielding 519 metric tons in 2013-14, cultivation expanded to 624 hectares and 1200 metric tons by 2022-23. This year, the production is estimated at 1400 metric tons, with Kullu contributing nearly 90%. The fruit has also created a new class of prosperous farmers. In Lug Valley, there is no official signboard, just a wooden gate declaring it Persimmon Paradise.
a 30-minute drive to Churla, the valley's Persimmon hub, reveals orchards draped in white nets against dramatic mountain backdrops. Churla's transformation began not with ambition, but with water scarcity. जो भी पानी का सोर्स होता है वो होता है हमारा पहाड़। पहाड़ से ऊपर से लेकर पहले गांव में पानी आएगा, दूसरे गांव में पानी आएगा, तीसरे गांव में पानी आएगा, हमारे गांव में पानी आते आते ख़त्म। हमारे को दिक्कत इतनी होती है कि आप विश्वास नहीं करोगे, हिमाचल कुल्लू जो मेन कुल्लू है वहाँ से हम सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद भी हमारे को पानी जो है, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली पंजाब में पानी के टैंकर चलते हैं ना, हमारे को उसके थ्रू हमने अभी 2-3 साल पहले हाँ वहाँ से हमारे को टैंकर के थ्रू पानी पीना पड़ता था। अब मान के चलो जो भी सब्जी वगैरह थे हमारे, अगर मैं बताऊँ ना कि आपको आज के टाइम में छुरला गांव ऐसा है जहाँ पे बद्दी जो मेन बोलते हैं ना कि लेबर जहाँ भी जाती है वो बद्दी में काम करती है, चंडीगढ़ में काम करती है। जैसे दादाजी खुद थे जो अपनी जवानी में थे, चंडीगढ़ जाते थे मजदूरी करने। इतनी बुरी हालत थी, क्यों? सब्जी लगाने के लिए पानी चाहिए होता है, पानी था नहीं। उसका अल्टरनेट में सिर्फ एक ही चीज़ था। अब सेब का क्लाइमेट जा रहा था तो उस टाइम सिर्फ हमारे पास बचा था परसिमन का पौधा। उसमें भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे जो भी हमारे डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है। उस टाइम कुल्लू का केरल कहा जाता था लग वैली को। मतलब काफ़ी एजुकेटेड लोग आज की डेट में लग वैली के काफ़ी एजुकेटेड है। और जो भी बड़े बड़े ऑफिसर थे हॉर्टिकल्चर के, एग्रीकल्चर के, वो खुद लग वैली के थे। अब जो नया प्लांट आता है वो कहाँ बेचेंगे? सिंपल सी बात है ना, अपने इलाके में हर कोई होता है। अब नेता देखो, कोई भी बोलो, पहले अपने इलाके का भला करेगा, तो उन्होंने हमारे को दे दिए थे। अब मरता क्या नहीं करता, सब्जी लग नहीं रही है, खेतों में रॉयल के जो हाल थे बुरे हो चुके थे। अब पर वैरायटी लेने जाओ, मैं कोट करके बोल दूंगा, मेरा क्या है, शिमला वालों ने हमारे को इतनी स्टिके 150-200 रुपये की दी हुई है, और उसमें भी निकला भी क्या, वही रॉयल। Thakur's family orchard now hosts nearly 1,000 persimmon plants. 2 decades ago, his father had to travel to Chandigarh to support the family. Today, a 3-month harvest from October to early January brings steady income. हाँ जी, तो रफली मैम प्रॉफिट तो मैं एक्सपोज नहीं करूँगा ना, पर इतना प्रॉफिट है कि आज की डेट में मतलब अब गवर्नमेंट सर्विस में तो पैसा है ही नहीं। जितना मान के चलो, जितना एक अच्छा खासा लोकल ले पे जेई का जो पैकेज लगता है ना, उतना हम कमा लेते हैं। मान के चलो, अभी ऐसा बताएंगे नहीं कितना कमाते हैं ना, पर इतना कमा लेते हैं, आप खुद ही पता लगाइए। अभी 73 दिनों से लेकर हम 3-4 फैमिली मेम्बर्स हैं, सारे इसी काम में जुड़े हुए हैं। अब रफली अपना अपना हिस्सा निकालेंगे तो इतना आ जाता है कि आ जाता है, काफ़ी आ जाता है। Thakur credits his grandfather for first taking persimmons beyond the village to build a market. तो ये फ्रूट पहली बार वो यहाँ से दिल्ली ले गए थे। उस टाइम पे ये हार्डली 20-30 रुपये किलो बिकता था, और दिल्ली तक का सफ़र भी आसान नहीं था। उससे पहले पंजाब बोलो आप, चंडीगढ़ बोलो, और लोकल्स की जितने भी आपको 12 स्टेट है, 12 स्टेट में 10 मंडी में ले गए। उसके बाद जाके जो आपको ये आज की डेट में एक सक्सेसफुल फ्रूट दिख रहा है, जो 250-300 रुपये किलो बिक रहा है, तो ये उस टाइम पे 20 रुपये किलो यहाँ से दिल्ली पहुँचा के मिलता था। और जो आज की डेट में जो आपको सेब की हालत दिख रही होगी ना, जो ट्रक्स के लाके गाड़ियों में फेंका जा रहा है, जो बी ग्रेड होता है, वैसी कंडीशन उस टाइम इसकी थी। क्योंकि जब यहाँ से लेते थे हम 20 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये किलो लेते थे, और नीचे मंडी वाले बोल देते थे कि नहीं बिकेगा, फिर उसको फेंकना पड़ता था। और उस टाइम में जाके एक यूनियन बनाई थी, उसमें दादाजी थे और उसके साथ 1-2 उनके और साथी थे, तो पहली बार यहाँ से डायरेक्ट इसको दिल्ली ले गए थे। उसके बाद ही जो आज की डेट में आपको मिल रहा है, इसका ये इतना अच्छा मिल रहा है। Farmers say wholesalers played a key role in popularizing the fruit nationwide, educating traders and consumers. स्टार्टिंग में मेरा मतलब पूरे सीजन का होता था, तकरीबन 10-15 टन का ही होता था। और उस समय इसको क्या है ना, हर मार्केट, एक तो मार्केट एक्सप्लोर करना रहता है हम लोगों को, फिर देखना रहता था कि हाँ डिमांड कहाँ बनेगी। पहले इसको क्या है ना, एक्चुअली इसको प्रमोट करने में काफ़ी परेशानी आई हम लोगों को। जैसे चेन्नई लेके गए तो बड़ा कम, तकरीबन 100 केजीज वगैरह था। अब क्या था कि वो देखना था कि भाई इस फ्रूट को लोग पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। फिर एक एक आदमी को बड़ा मुश्किल होता था बताना कि इस फ्रूट्स की क्या खासियत है। तो बस यही था कि मार्केट में रहता था, लोग आते थे, जाते थे, ख़रीदते थे। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि भाई इंडिया के लोग इसको थोड़ा लेट से ख़रीदेंगे, बट जो फॉरेनर लोग हैं या जो फॉरेन रह के आए हैं वो इसको पहचानते थे। तो बड़ा अच्छा लगा जो प्रोजेक्ट वगैरह चलता था, स्पेशली चाइना का, कोरिया का, यूरोप का, तो वहाँ वहाँ के सिटीज़न जिस एरिया में थे वहाँ इस फ्रूट को लोग चॉइस करने लगे, पसंद करने लगे, और फिर डिमांड वहीं से शुरू हुआ। फिर वो चीज़ जो था, जो 100 किलो का था, वो धीरे धीरे टन में आ गया।
हाँ, मुंबई में भी इसी तरह से हुआ। मुंबई में पहले जब शुरू में हम लोग ले गए तो क्या था कि लोग प्रोनाउंसिएशन तक इसका नहीं समझ पा रहे थे। तो परसिमन जो फ्रूट थी ना, उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे लोग सिमरन, मतलब सिमरन कहते थे। एक दो बार हम गए, भाई आप थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए, परसिमन वगैरह उसके कैलेंडर टेबल पे भी लिख के आते थे। लेकिन क्या हो गया ना, एक बार वो सिमरन सिमरन प्रमोट हो गया ना, तो सारे लोग ऑलमोस्ट आप मुंबई में, पुणे में इसको सिमरन कहने लगे लोग। हाँ, अब धीरे धीरे क्या है कि बॉक्स पे भी परसिमन वो लिखा रहता है, या लोग फिर जानने लगे, उसी नाम से बुलाते थे। कहीं रामफल, कहीं काकी फ्रूट, ये मतलब हर जगह का, कहीं जापानी फ्रूट, यही सब कहते हैं। According to Kumar, persimmon has definitely grown, but there is a lot of untapped potential of the fruit. And government support is crucial, in fact, very crucial for this next phase. कि जैसे हर एक स्पेशल फ्रूट्स के लिए एक रिसर्च सेंटर बना हुआ है, तो परसिमन फ्रूट के लिए भी एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए कुल्लू में। जैसे लीची के लिए नेशनल लीची रिसर्च सेंटर मुशहरी, या फिर नेशनल मैंगो रिसर्च सेंटर के लिए लखनऊ मलिहाबाद। तो परसिमन फ्रूट इतना बढ़िया फ्रूट है और इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिकली यहाँ के जो फार्मर हैं उनको स्ट्रेंथ कर रहे हैं। तो ऐसे में एक अगर यहाँ पर रिसर्च सेंटर होता परसिमन फ्रूट्स के लिए, और यहाँ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ साइंटिस्ट, एक्सपर्ट वगैरह अगर यहाँ पे भेजते, तो निश्चित ही ये और तेज़ी से ये फ्रूट्स जो है ना, उसका कल्टीवेशन यहाँ बढ़ता। हाँ, और यहाँ के फार्मर इसका फ़ायदा लेते हैं। तो इस ओर ध्यान देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। While persimmons continue to fetch huge profits to farmers, environmentalists say that absolutely nothing can beat the apples in Himachal Pradesh. For them, persimmons are just a passing trend, just like the plums, pomegranates, and lychees. Well, only time will tell that this belt, this state which is known for its apple production, can in the near future it be called the persimmon capital of India? This is Triya Gulati reporting for The Print from Kullu.